गुड मॉर्निंग सभी को। जय यीशु सकल के। जय मसीह की। थोड़ा जोश के साथ जय मसीह की। ओके, जो लोग ऑनलाइन हैं उनको भी हम लोग स्वागत करते हैं आज इस सहभागिता में। हम लोग आज एक साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। मैं एक भजन संगीता से पढ़ना चाहूँगा। आप लोग अपने अपने बाइबल खोल सकते हैं। साम्स 25। भजन संगीता 25। सॉरी 26। साम्स 26। हम लोग रिस्पॉन्सिवली पढ़ सकते हैं। तो पहला लाइन मैं पढ़ूंगा, नेक्स्ट लाइन आप लोग सब कोई। आइए हम लोग खड़े हो जाते हैं और पढ़ेंगे एक साथ। सो फर्स्ट लाइन मैं पढ़ूंगा और सेकंड लाइन आप पढ़ेंगे और लास्ट वाला लाइन एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। Vindicate me, O Lord, for I have walked in the integrity, and I have trusted in the Lord without wavering. Though examine me, O Lord, and try me, test my mind and heart. For your loving kindness is before my eyes, and I have walked in your truth. मैं निकम्मे चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ भी नहीं जाऊंगा। I hate the assembly of evildoers, and I will not sit with the wicked. मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल में धोऊंगा। तब हे यहोवा, मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, That I may proclaim with the voice of thanksgiving and declare all your wonders. तेरे सदाचल कर्मों का वर्णन करूंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम से तेरी Do not take my soul away along with sinners, nor my life with men of bloodshed. वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ क्रूस से भरा रहता है। But as for me, I shall walk in my integrity. Redeem me and be gracious to me. मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर हैं। In the सभाओं में मैं congregation I यहोवा को shall धन्यवाद। bless the Lord. Amen. यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वर्स 7 में बोलता है, I shall proclaim with the voice of thanksgiving and declare all the wonders you have done. और एक वर्स में बोलता है, I shall praise the Lord and declare what he has done in my life. আমি তার প্রশংসা করব এবং তার মহান কাজের গুণগান আমি সব জায়গায় বলে বেড়াবো। আর আমি যখন এটা পড়ছিলাম, আর যে 25 পড়েন এর সঙ্গে 25 अध्याय, अगर हम लोग 25 पढ़ेंगे भजन संगीता, तो वहाँ पे वो भी दाऊद का लिखा हुआ ही साम है। वहाँ पे दाऊद बोल रहा है कि कैसे परमेश्वर की सच्चाई या तो परमेश्वर की राहें, परमेश्वर की इच्छा हम जान पाते हैं और उसके बाद क्या होता है। तो बेहतरीन 25 है। और उसके बाद जब 26 आता है तो फिर दाऊद बोलता है कि मैं उसका गुणगान गाऊंगा, उसका काम का प्रशंसा करूंगा। और हम लोग मैं जब सोच भी रहा था दाऊद के बारे में, अगर आप देखेंगे एक अद्भुत इंसान था। इतना बड़ा इंसान है मगर 25 का लास्ट में बोलता है मेरे साथ अच्छा ही होगा या तो मेरा उद्धार आएगा। বাংলায় বলছে সততা এবং সিদ্ধতা, ইংরেজি में ট্রুথ অ্যান্ড এক্স্যাক্টলি मुझे याद नहीं। বাংলায় বলছে সততা এবং সিদ্ধতা থেকে আমার রক্ষা আসবে। কেন? কারণ क्यों आएगा? क्योंकि मैंने परमेश्वर के अपेक्षा में मैं हूँ, परमेश्वर का इंतजार मैं कर रहा हूँ। আমি ঈশ্বরের অপেক্ষায় তোমার অপেক্ষায় রয়েছি। তো দাউদের ক্ষেত্রে আমি এটা দারুণ যে এত বড় রাজা হয়েও এত কিছু থাকা সত্ত্বেও ভেরি সিম্পল হার্ট, যে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, ঈশ্বরের উপরে তার ধ্যান এবং ঈশ্বরের উপরে তার সকল ভরসা। আর তাই আজ দাউদ
ঈশ্বরের সেই উদ্ধার তার জীবনে পেয়েছিল। আর তাই আজ আমরা দাউদকে বলি ঈশ্বরের হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের লোক। আমরা একটা গান করব। আমি চাই যে আমরা যখন आराधना करी, আসুন আমরা दिल मन থেকে आराधना करी। हम लोग दिल से आराधना का गीत को गाएंगे, परमेश्वर का प्रशंसा करेंगे, इसलिए कि वो कौन है। 25 बोलता है कि मैं इसलिए तेरा काम नहीं देखना चाहता कि मैं क्या क्या हूँ, मैं इसलिए तेरा काम देखना चाहता हूँ कि तू कौन है। तो उसकी बड़ाई गाएंगे एक साथ, मन खोल के हम लोग गाएंगे। कुछ देर हम लोग सर को झुकाते हैं और परमेश्वर में मगन होते हैं। প্রভু যিশু তোমার চরণে আসি প্রভু, এটা জেনে যে তুমি মহান ঈশ্বর, তুমি দয়ালু ঈশ্বর প্রভু। আজকে আমরা এখানে যখন মণ্ডলীতে এসেছি আমাদের গুণে না প্রভু, আমাদের গুণে আমরা তোমার চরণে আসতে পারি না প্রভু, কিন্তু তোমার গুণে, তোমার সেই দয়ায়, তোমার সেই অনুগ্রহে, তোমার করুণায় আজকে আমরা তোমার চরণে এসেছি প্রভু। আমরা প্রত্যেকে নত হই প্রভু, নম্র হই, সমর্পিত হয় তোমার সামনে প্রভু। প্রভু আমাদের হৃদয় তোমার সামনে তুলে ধরি প্রভু। আমরা যদি আমাদের হৃদয়ে যদি কারো হৃদয়ে কোনো ক্ষমাশীলতা না থাকে, আমরা যদি কাউকে ক্ষমা না করে এসে থাকি প্রভু, এই সময় তোমার হাতে সমর্পণ করছি প্রভু। সেই বিষয়টা প্রার্থনা করি প্রভু, তুমি আমাকে শক্তি দাও। প্রত্যেকে যারা আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করেছে, हर कोई जो मेरे खिलाफ गलत किया है प्रभु, हर किसी को मैं क्षमा करना चाहता हूँ प्रभु। जितने सारे बुराइयाँ मिला है सबको मैं भूल जाना चाहता हूँ, तेरे सामने मैं समर्पित करना चाहता हूँ प्रभु। আর প্রভু আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থী প্রভু, যে আমি অনেক কিছু করেছি গত সপ্তাহে, আমি জানি প্রভু কোনোভাবেই তোমার চোখে গ্রহণযোগ্য না, কিন্তু শুধু তোমার দয়ায়, তোমার অনুগ্রহে তুমি আজকে এখানে আসতে দিয়েছো প্রভু আমাদেরকে। এমনই সময়ে আমি গান গেয়ে যাই প্রভুর জন্য, ভালোবাসায় গান গাই। এমনই সময়ে হাত উপরে ওঠায় প্রভুর জন্য, হাত উপরে ওঠায়। এমনই সময়ে, এমনই সময়ে আমি গান গেয়ে যাই প্রভুর জন্য, ভালোবাসার গান গাই। এমনই সময়ে হাত উপরে ওঠায় প্রভুর জন্য, হাত উপরে ওঠায়। এমনই সময়, আরেকবার সবাই মন থেকে, এমনই সময়ে আমি গান গেয়ে যাই প্রভুর জন্য, ভালোবাসার গান গাই। এমনই সময়ে হাত উপরে ওঠায় প্রভুর জন্য, হাত উপরে। সবাই মিলে একসঙ্গে মন থেকে বলি, প্রভু এমনই সময়ে আমি গান গেয়ে যাই
থেকে এমনই সময়ে আমি গান গেয়ে যাই প্রভু জন্য ভালোবাসার গান গাই। এমনই সময়ে হাত ধরে ওঠাই প্রভু জন্য আদরে ওঠাই। প্রভু ভালোবাসি, প্রভু ভালোবাসি, প্রভু ভালোবাসি, প্রভু ভালোবাসি। আওয়াজ উঠিয়ে প্রভু ভালোবাসি, প্রভু ভালোবাসি। প্রভু তোমায় ভালোবাসি প্রভু, তোমার গুণের জন্য প্রভু, এখন তোমার করুণার জন্য প্রভু, তুমি আগে ভালোবেসছো প্রভু। ভালোবাসি, প্রভু ভালোবাসি। আরেকটি বার আওয়াজ তুলে প্রভু ভালোবাসি। হৃদয়ের গভীর থেকে আসুন আপনি যিশুকে বলুন। आइए हम लोग दिल से यीशु मसीह को बोलते, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। ভালোবাসি, প্রভু ভালোবাসি। আরেকটি বার প্রভু ভালোবাসি, প্রভু ভালোবাসি, প্রভু ভালোবাসি, प्रभु भालोबासी। और एक बार शिद्दत से गाते हैं प्रभु भालोबासी। आइए दिल से बोलते हैं, हाँ यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ प्रभु, क्योंकि आप मेरे लिए जो किए हैं प्रभु उसके लिए। ভালোবাসি, প্রভু ভালোবাসি, প্রভু ভালোবাসি, প্রভু ভালোবাসি, প্রভু ভালোবাসি, প্রভু ভালোবাসি। हाँ यीशु जी, हम सभी आपसे प्यार करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमसे पहले प्यार किया है प्रभु। इसलिए नहीं कि हम लोग अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि हमने समझ गए हैं कि आप कौन है, हमारे लिए क्या किया है, मगर इसलिए कि आप हमारे सारे प्यार के योग्य हैं परमेश्वर। आपके जैसा दूजा कोई नहीं और आपके सिवा मेरा कोई उपाय नहीं प्रभु। मैं इस दुनिया में बहुत सारी चीजों को देखा हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं प्रभु, मगर जैसे दाऊद ने बोला है कि तुझसे बेहतर क्या है। दाऊद तो शायद समझा होगा, इसलिए उसने बोल पाया कि जो तेरे राहों में चलता है, तेरी इच्छा में चलते, तेरे वचन में चलता है, उसके लिए तेरा जो नियम है वो सत्य है और अनुग्रह है प्रभु। प्रभु मैं दाऊद के साथ एक मन हो के दाऊद जैसे बोला है वैसे मैं बोलना चाहता हूं कि तू मेरे लिए सत्य है और अनुग्रह है। तेरे सिवा मेरा कोई उपाय नहीं, तेरे सिवा और कोई सत्य नहीं है प्रभु, तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है प्रभु। तू ही मेरा एकमात्र उपाय है, तुम ही हमारा एकमात्र उपाय, एकमात्र भरोसा, তোমা ছাড়া আর কেউ নেই প্রভু। আজকে রবিবারের সকালবেলায় প্রভু আমরা মণ্ডলী হিসাবে তোমাকে বলতে যাই প্রভু, হ্যাঁ প্রভু তোমাকে আমরা ভালোবাসি, তোমার প্রেম আমরা জীবনে পেয়েছি প্রভু, আর তাই আমরা তোমাকে বলছি যে আমরা তোমাকে ভালোবাসি। আমেন, আমেন।
আসুন আমরা এই গানটা গাইবো, বলছি এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই, কোনো গ্যারেন্টি নেই। আগে তো বয়স্ক হলেই লোকেরা মরতো, আজকাল যে কোনো সময় যে কেউ মারা যাচ্ছে। রিসেন্টলি আপনারা যারা স্পোর্টস ফলো করেন, জিম্বাবুয়ের ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট প্লেয়ার যে ছিলেন, সে 49 ইয়ার্স ওল্ড ছিল, 49 বছর বয়সে ক্যান্সারে মারা গেলেন। সো আমাদের জীবনের কোনো গ্যারান্টি নেই, আর আজকে আছে কাল নেই, আজকে আছে কাল নেই, এই মুহূর্তে আছে এই মুহূর্তেই আবার নেই না। অনেকে হয়তো এরকম আরাধনা করতে করতে দেখবে তখন মরে গেছে, কোনো গ্যারান্টি নেই। কিন্তু যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ জীবনটাকে একদম ঈশ্বরের মধ্যে ডুবি। খ্রিস্টীয় জীবনে বারবার আমি বলি, ख्रिस्टीय जीवने एक विश्वासी जीवन में 99% नहीं होता, 100% नहीं तो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप 99% जी नहीं सकते। हम लोग जो सोचते हैं कि ठीक है थोड़ा सा, नॉट पॉसिबल, वो संभव ही नहीं है। आप और मैं जब तक 100% नहीं छोड़ता कि यीशु आपके सिवा कोई चारा ही नहीं है, तभी जीना। मैं जिस दिन मैं सोचा कि ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, उस दिन मैं डेफिनेटली पाप में गिरा हूँ। और जिस दिन मैं सोचा प्रभु उपाय तो मेरा नहीं है, मैं तो पापी इंसान हूँ, मैं गिरूंगा ही, आप छोड़ के मेरा कोई उपाय नहीं है, उस दिन मैं आइए इस गीत को गाते हैं। এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই। এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই। এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই। তালি বাজাতে হবে। এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই। এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই। যিশু ছাড়া আর কেউ নেই, যিশু ছাড়া আর কেউ নেই, যিশু ছাড়া আর কেউ নেই, যিশু ছাড়া আর কেউ নেই। চলে এসো চলে এসো যিশুর কাছে, চলে এসো চলে এসো যিশুর কাছে। এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই। সবাই মিলে একসাথে, এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই। শান্তি খোঁজো শান্তি পাবে, মুক্তি খোঁজো মুক্তি পাবে। শান্তি খোঁজো হ্যাঁ শান্তি পাবে, মুক্তি খোঁজো মুক্তি পাবে। যিশু ছাড়া আর কেউ নেই, যিশু ছাড়া আর কেউ নেই, যিশু ছাড়া আর কেউ নেই, যিশু ছাড়া আর কেউ নেই। চলে এসো যিশুর কাছে, চলে এসো যিশুর কাছে। এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই। এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই। আমাদের এই জীবন, আমাদের জীবন মিশে যাবে একদিন সংসারে, আমাদের জীবন মিশে যাবে একদিন সংসারে। যিশু ছাড়া আর কেউ নেই, যিশু ছাড়া আর কেউ নেই, যিশু ছাড়া আর কেউ নেই, যিশু ছাড়া আর কেউ নেই। চলে এসো যিশুর কাছে, চলে এসো যিশুর কাছে। এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই। এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই। আরেকবার, এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে
জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই। আমাদের জীবন মিশে যাবে একদিন সংসারে। সংসারে বলতে যে লেখক বলছে যে এই জীবন আমাদের শেষ হয়ে যাবে এখানে, কিন্তু কি থাকবে? আমাদের প্রাণ, তাই না? আমাদের প্রাণ সব সময় থাকবে। আর এই প্রাণ যে বা আত্মা অনন্তকালীন কি করবে? हाँ क्या करेगा? भाभी बोल रही थी कुछ। अनंतकालीन जीवित रहेगा, और जीवित रहेगा उसका काम क्या रहेगा? इसका एक ही काम आराधना करना, और कोई काम नहीं। बाकी सारे, एक चीज मैं बोलता हूँ, हमारे मंडली में भी सबका काम चला जाएगा, पास्टर लोग का कोई काम नहीं रहेगा, मगर मेरा तो हेवन में काम रहेगा, क्योंकि मैं तो आराधना करूँगा। जो जो पास्टर आराधना करते हैं अच्छा है, या जो जो मेंबर्स आराधना करते हैं, जो जो नौकरी करते हैं आप लोग, अगर आराधना आप कर रहे हैं जीवन में, तो आपका तैयारी ठीक है, आप बड़े चीज के लिए तैयार है। मगर जो आराधना नहीं कर रहे हैं वो बेकार, उसका अनंतकालीन वो बेकार बैठा हुआ रहेगा, या तो वहां पे जाके ट्रेन लेगा। तो परमेश्वर धन्यवाद देते कि हमें बुलाया है उनकी आराधना करने के लिए। आमेन, आमेन। और ये जो जितने हम लोग वचन पढ़ते इतना समझ पाते हैं कि हम लोग उसके सामने आराधना करने के लिए आ ही नहीं सकते, कोई योग्यता नहीं है। यीशु ने बोला कि मैं तुमको अपना दास नहीं बुलाता हूं, मैं तुमको क्या बुलाता हूं? दोस्त। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये है हम लोग एक्चुअली में दास ही है। ये तो उसका बड़ाई है कि वो हमें दोस्त बुलाता है, हम उनके सेवा के योग्य नहीं है। हम लोग आसानी से बोलते हैं प्रभु का दास, मगर बाइबल में हार्डली लोगों को बोला गया है प्रभु का दास, मगर प्रभु ने हमें ये मौका दिया। आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे, बहुत ही खूबसूरत पुराना एक गाना है, हो तेरी स्तुति और आराधना। हम लोग मन से उसकी स्तुति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, ठीक है? स्तुति और आराधना
मैं टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु जी तेरे प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम सब मिलके तेरी आराधना करते हैं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं प्रभु। सारे सृष्टि के मालिक तू है, सारे विषय के अधिकारी तू है प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। महान जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके हाथ में हर विषय है, जो हर विषय को जानता है, हर विषय का हिसाब है जिसके पास। और प्रभु तेरे प्रशंसा करते हैं, तेरे स्तुति गाते हैं, तेरे नाम ऊंचा उठाते हैं। आइए मंडली हम लोग हाथ को उठाते हुए इस कोरस को गाते हैं, बोलते प्रभु तेरे हालेलुया करते हैं, तेरे प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक बार हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ। और एक बार एक साथ हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर,
जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब मिलके दिल से उस परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं হৃদয় গভীর से। আসলে আমরা সবাই মিলে মনের গভীর থেকে তার প্রশংসা করি, সেই জীবন্ত ঈশ্বরের নাম যে উপরে উঠায়, তার নাম উচ্চকিত করি। ও ইয়েশু, ও হালেলুয়া, হালেলুয়া, प्रभु जी तेरी प्रशंसा करते हैं, प्रभु जी तेरी महिमा करते हैं प्रभु। ओ जीवित परमेश्वर प्रभु, जिसके पास आने से आशा मिलता है, जिसके पास आने से हमारे हृदय बदलता है प्रभु, हमारे जीवन बदलता है, और इतना ही नहीं प्रभु हमारे स्वभाव भी बदल जाता है प्रभु। प्रभु तेरे चरणों में आता हूँ, तेरे खोज में आता हूँ प्रभु। ओ प्रभु मुझे तू ऐसे जीवन दे, ऐसे मन दे, ऐसे हृदय दे प्रभु कि मैं दिन भर दाऊद जैसे तेरा खोज करता था वैसे खोज करने पाऊँ प्रभु, तेरी इच्छा का खोज करने पाऊँ प्रभु, तेरे राह का खोज करने पाऊँ प्रभु, और तेरे जो वचन है उसमें जो सत्य है उसका खोज करने पाऊँ प्रभु। ये मंडली हम लोग एक साथ इस सुबह प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम लोग तेरे खोजी बनने पाए प्रभु, हम लोग पागल होने पाए प्रभु तेरे लिए प्रभु। लोग हमें देखे और बोले ये तो एबनॉर्मल है क्योंकि ये बाकी जैसे जीते नहीं, यीशु मसीह के लिए पागल है, वैसे होने पाए प्रभु। आप हमें आशीष करे प्रभु, सहायता करे प्रभु। ओ प्रभु हम लोग दुर्बल है प्रभु, हर दिन मैं सोचता हूँ कि आज तो सिर्फ तेरे लिए जीऊंगा, मगर मैं तो स्वार्थपर हूँ, मैं अब तो सेल्फिश हूँ प्रभु, मैं नहीं सकता हूँ प्रभु। पर आज मेरा प्रार्थना है प्रभु तेरे वचन के हिसाब से, और तू बोला है कि अगर तू मेरी इच्छा के हिसाब से मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा प्रभु। प्रार्थना करते हैं हम सभी को प्रभु, तू ऐसे हृदय के सेल्फलेस हृदय होने पाए प्रभु, सिर्फ तेरे बारे में, जैसे पौलुस ने बोला है कि मैं तो यीशु के साथ उस क्रूस पे मर चुका हूँ, अभी मैं नहीं यीशु मुझ में जीवित है, वैसे मेरा जीवन होने पाए प्रभु। ओ यीशु तेरे स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे प्रशंसा करते हैं प्रभु। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, और हम इसलिए घुटना तेरे सामने टिकाते हैं प्रभु, इसलिए नहीं कि हमारा इच्छा है, मगर इसलिए कि तेरे सामने जो आता है उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है सिवाय घुटनों में सर झुकाए हुए आने का। ओ यीशु तेरा प्यार कितना महान है, तो इतना महान होके भी तूने हमसे जो नालायक है, जो तेरा दुश्मन था, उससे प्यार किया तूने। ओ यीशु तेरे प्रशंसा होने पाए प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। ये हम लोग बैठ जाते हैं।
जय मसीह की। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब भले चंगे हैं। हम लोग हमेशा से हमें अच्छा लगता है जब हम नए लोगों को वेलकम करते हैं। हमारे बीच में अगर पहली बार कोई आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। कोई पहली बार हमारे बीच में आए हैं? ऐसे कोई नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमें निमंत्रण देने की ज़रूरत है, मंडी में लोगों को बुलाने की ज़रूरत। बट आप सबों को मैं स्वागत करना चाहता हूं। आप बगल में बैठे व्यक्ति को बोल सकते हैं, स्वागत आपका प्रभु के इस भवन में। You can greet your neighbor saying, "Welcome in the house of the Lord." All right, so I don't know, शायद आपने ये व्यक्ति के बारे में सुना कि एक मेला में कुछ बेच रहा था। I don't know if you've heard about this person. He was selling something in the fair. आप मेरे साथ इमेजिन कीजिए, ये व्यक्ति झोला टांग के रखा है। ग्रामीण वाला थोड़ा सा क्षेत्र है, सो साइड में वो बैग टांग के रखा है। Just try to imagine with me this guy. He has a bag hanging in his shoulder. It's in the outskirts of the city. और बहुत अच्छा वो जो टोपी एक पहना हुआ है और कुछ तो बेच रहा है वो। He's wearing a really nice hat and he's selling something. और जैसे आप जानते हैं कि जो गांव तरफ में जो लोग बेचते हैं, पूरे चारों तरफ से लोग उसको घेर के खड़े थे। And you can imagine in the village you have a lot of people crowding around him. और सब कोई उसकी बात को सुन रहे हैं। And everybody is listening to him. एकदम पूरा भीड़ जमा हुई है। There's a huge crowd. एक यूनिक बात था इस भीड़ में। There was a very unique thing about this crowd. जितने भी लोग जो भीड़ में थे उनमें से काफी लोग का सर में बाल थोड़ा कम था। The people in the crowd, they were a lot of them did not have a lot of hair on their head. ओके, सो बाद में पता चलता है एक्चुअली वो कोई तेल बेच रहा है। And later we come to know that he's selling oil. और वो बोल रहा था कि जो भी ये तेल लगाएगा उसका सर में अगर बाल नहीं है तो वो फिर से उग कर आएगा। And this guy is telling everyone, if you use this oil then you will get more hair. और इसीलिए शायद ज्यादा लोग जो जिनके सिर में बाल नहीं थे वो लोग उसके चारों ओर ज्यादा लोग खड़े थे। And which is why I think a lot of people who did not have hair were crowding around. ना एक हवा का झोंका आया और उसका जो सिर में जो टोपी था वो उड़ गया। A great gust of wind it came and it blew away the beautiful hat he was wearing. और जैसे उसका टोपी उड़ गया, And as soon as the hat flew away, उस भीड़ के लोग धीरे धीरे करके दूर जाने लगे। the crowd started dispersing. क्या हुआ भाई? What happened? क्योंकि जैसे उसका टोपी उड़ा पता चला कि वो खुद गंजा था। Because as soon as they saw that the hat flew away, they saw that he himself was bald. कई बार लोग जो प्रोडक्ट बेचते हैं, A lot of times when people sell a product, क्या वो खुद उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं do they use that product on their own या सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं? or are they just marketing? आज हमारे मसीही विश्वास को भी परखने की जरूरत है। We need to test out our faith as well. हमारा मसीही विश्वास, Our Christian beliefs, जैसे तपन ने बहुत सुंदर इस बात को बोला very beautifully Tapan put it in front of us. कि हमारा 100% एक मसीही जीवन होना चाहिए। Our Christian life should have our whole 100%. हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ जो यात्रा है, वो यात्रा को हम आनंद कर सके, उस यात्रा का हम आनंद उठा सके। Our journey with Christ should be full of joy. दुख के बीच में भी हमें आनंद उठाना है, Even in the midst of trials, we need to have joy. क्योंकि मसीही जीवन में ये संभव है। Because in Christian living, it is possible. जब पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया गया था, When Paul and Silas were in prison, उनके हाथ पांव जंजीरों से जकड़ा हुआ था। their hands and their legs were
bound with chains. क्या कर रहे थे वो लोग? What were they doing? दुख मना रहे थे? Were they crying? नहीं, No. वो गीत गा रहे थे, They were singing. वो परमेश्वर की आराधना कर रहे They थे। were praising और God. जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, And when they were praising God, वो जेल का जंजीर टूट जाता है, the chains that were binding them, they जेल का broke दरवाजा open. खुल जाता है। The door of the prison, it flew open. मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है कि जहां दुख नहीं है, ऐसी बात नहीं, लेकिन दुख के बावजूद हम आनंद उठा सकते हैं। So Christian life is not something where you will not find sadness at all, but in that sadness, in that trial, you will find joy. ये हमारा मार्केटिंग नहीं है। This is not our marketing. हम ऐसे मार्केटिंग, ऐसे प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं जो खुद इंजॉय नहीं करते हैं। We are not marketing a product which we ourselves don't enjoy. और इसीलिए हमें आज हमारे अंदर में ये पूछने की जरूरत है कि क्या जिस बात को मैं बोलता हूं उसका आनंद मैं खुद उठा रहा हूं कि नहीं। Which is why we need to ask ourselves today that whatever I say, whatever I market, do I enjoy the benefits myself or not? अगर हम मसीही जीवन की यात्रा में If in our journey with Christ, हम आनंद नहीं कर रहे हैं we are not enjoying ourselves प्रभु की उपस्थिति का, of the presence of the Lord, उसके प्रोविजन का, उसने जो हमारे लिए जुगाड़ किया है, of His provision, of what He has given और एक us, आत्मिक जीवन का आनंद नहीं उठा रहे हैं, and we are not enjoying the benefits of तो a इसका spiritual मतलब life, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। then that means something's wrong with us. आज हम लोग उसी से संबंधित कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। Today we are going to look to something that relates to that. पिछली बार हम लोगों ने शिष्यता के विषय में बातचीत किया था। Last time we were talking about discipleship. हमने कहा था कि कैसे हम में से हर एक को परमेश्वर ने शिष्यता की बुलाहट में बुलाया है। We were talking about how Jesus has called us to a journey of discipleship with Him. यीशु ने कहा अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। Jesus said, bear your cross and follow me. और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे उस यात्रा को हम करेंगे। And today we are going to see how we can start this discipleship journey with मसीही Christ. जीवन की शुरुआत यीशु मसीह के बुलाहट के प्रति हाँ बोलने से शुरू होता है। The beginning of our journey with Christ starts with us saying yes to Him. इसका मतलब ये है कि हम यीशु को बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, और जब उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं, उसके पीछे चलने का प्रण आप ले लेते हैं। यस, सॉरी। ओके, जब आप यीशु के पीछे चलने के लिए बोलते हैं कि प्रभु मैं आपको अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता हूँ, When we say yes to Jesus, saying, Jesus, I accept you as my Lord and और Savior, पूरे दुनिया के सामने ये घोषणा करते हैं बपतिस्मा के द्वारा कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, and through our baptism in water, we declare to the world that I am a follower of Jesus, ये मसीही जीवन की शुरुआत है। this is the beginning of our Christian life. ये यात्रा की शुरुआत है, This is just the beginning of our journey. और यात्रा की शुरुआत हमारी आखिरी मंजिल नहीं होती है। And the beginning of our journey is not our actual destination.
Just like kids when they sit in the car or in the train or in the flight, thinking that we are going to the beach side. लेकिन जब वहां से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, But when the vehicle does not move, धीरे धीरे करके उनके जीवन में वो निराशा शुरू हो जाती है। slowly the sadness starts creeping in. मसीही जीवन की शुरुआत आपकी जस्ट शुरुआत है। The start of your Christian life is just the start. अगर वहां से आपकी यात्रा आगे नहीं बढ़ रही है, If your journey is not moving along after that, अगर हर दिन आप यीशु को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, if you are not able to experience Christ in your daily life, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, उस उद्देश्य के अनुसार आप जीवन नहीं जी रहे हैं, if you are not living your life according to the purpose that God has set for you, फिर धीरे धीरे करके क्या होने वाला है? then what is going to आपके happen? जीवन में निराशा आने वाली है। Your life will have sadness. जिस यात्रा की आप शुरुआत किए हैं, The journey that you have started, उसमें अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, if you are not moving along the आगे journey, नहीं बढ़ पा रहे if हैं, you are not able to move along, आपके जीवन में बहुत जल्द एक निराशा आने वाली है। your life will experience something really sad. अगर आप मसीही जीवन की यात्रा में निराशा का अनुभव कर रहे हैं, If you are experiencing sadness in your Christian life, इसका मतलब ऐसे तो नहीं कि आपकी यात्रा आगे नहीं बढ़ रही है। then does that mean that you are not moving along in your journey? ऐसा तो नहीं, प्रभु आगे निकल गए, आप पीछे रहे। Is it so that Christ is way ahead of you and you are still standing in one आपने बोला प्रभु मैं तेरे पीछे चलने के लिए निकला हूँ, You say that God, I want to follow you, और प्रभु के पीछे आप चल तो रहे थे, and you were following Him, लेकिन धीरे धीरे करके but slowly प्रभु आगे निकलते जा रहे हैं। Jesus started moving far away from you. आप कई सारी चीजों में अपने आप को व्यस्त करते हुए You started busying yourself in a lot of different things. इसमें व्यस्त हो गए, You start getting busy with that. उसमें व्यस्त हो गए, Yes, और धीरे धीरे करके आप पीछे ही रह गए। and slowly you were left behind. अगर ऐसी हो गई है, And if this is your Christian तो life, अवश्य है कि आप मसीह जीवन की यात्रा को आनंद नहीं उठा रहे हैं। then it is true that you are not enjoying your Christian इसलिए life. आज हमें पूछने की जरूरत है, Which is why we need to ask today. इस बात को देखने की जरूरत है We need to look at our lives today. कि उस यात्रा में आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं कि Are नहीं, you actively involved in your वो Christian गाड़ी life? मूव कर रही है कि नहीं, Is your car moving or वो not? गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, Does your car have petrol in it? और आप यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। And are you moving ahead in your क्योंकि जैसे journey? जैसे आप यात्रा में बढ़ेंगे, Because when you move along in your Christian life, एक्साइटमेंट घटता नहीं है, एक्साइटमेंट बढ़ता है। the excitement does not decrease but it increases. जैसे जैसे आप वो पहाड़ी जगह में पहुंचना शुरू कर देते हैं, शिलोंग के पहाड़ियों में जैसे वो गाड़ी उठना शुरू हो जाती है, And when your car starts moving along those mountains of Shillong, आपका उत्साह और बढ़ते your जाएगा। excitement it starts increasing. जैसे जैसे वो फ्लाइट लैंडिंग के लिए तैयार होती है, And as soon as you see your flight about to land, वो डेस्टिनेशन आपको दिखाई दे रहा है you अब can see आपको, your destination now. और वो उत्साह आपका जीवन में और बढ़ जाता है। And you start getting encouraged. और जब मसीही जीवन की यात्रा में आप बढ़ रहे हैं, And when you are moving in your Christian life, हर दिन प्रभु के संग संग चल रहे हैं, every day when you're walking with Christ, जब प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर रहे when हैं, you're experiencing the presence of the जब Lord, आपके जीवन में प्रभु के काम को देख रहे हैं, when you are seeing God move in your life, वो आपका जीवन उत्साह से भरा भरते जाएगा। your life is filled with excitement. आपका मसीही जीवन अगर आज निराशा है, If you have a sad Christian life today, आपके जीवन में अगर कोई चीज की कमी लग रही है, if you feel like something's missing, हमें पूछने की जरूरत है, we need to ask क्या ourselves, मैं उस यात्रा में आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ, am I moving along in my क्या journey or प्रभु के not? संग संग चल रहा हूँ या नहीं चल If, रहा हूँ। am I walking alongside Christ or not? आइए हम लोग थोड़ा आज इस चीज को अपने आप को जांचने का कोशिश करेंगे। Let's try to see if this is an issue with us. जब भी प्रभु ने हमें बुलाया है, When God has called us, हमें एक मिशन में बुलाया, एक लक्ष्य के लिए बुलाया है, He has called us for a mission. उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। He has called us to move for that mission.
एक मिनट। सेकेंड स्क्रीन में भेजो, आ रहा है वहाँ? ओके, कोई बात नहीं। सो ठीक है, मेरे साथ बने रहें। अगर डिस्प्ले में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। सो एक मिशन, एक लक्ष्य के लिए प्रभु ने बुलाया है। God has called us for a mission. आप जब यात्रा में निकले हैं, एक लक्ष्य के लिए आप निकले हैं। When you go out on a journey, you have a mission. उस जगह में पहुंचने के लिए आप निकले हैं। You have gone out for a journey to reach a particular destination. और उस मिशन में प्रभु ने एक मैसेज हमें दिया है, एक संदेश हमें दिया है। And in that mission, God has given us a message. एक संदेश है प्रभु के पास, God has a message for us. एक जीवनदायक संदेश है प्रभु के पास, A message that gives us life. एक खुशखबरी है प्रभु के पास। A good news for our lives. और उस संदेश को बताने के लिए हमें बुलाया है। And God has called us to give us that message. और तीसरा जो है ना, एक मेथड प्रभु ने हमें दिया है। And the third thing is that God has given us a method. जिस बुलाहट में प्रभु ने हमें बुलाया है, The mission for which God has called us for, उसमें प्रभु ने क्या दिया है? पहला मिशन दिया है। सब कोई बोलेंगे मिशन the दिया है। first thing that He's given us is a mission. बगल वाले व्यक्ति को बोलिए मिशन दिया है। Tell your neighbor He has given us a mission. एक लक्ष्य दिया है। He has given us a purpose. हाँ, एक उसके साथ एक संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है। He has given us a message. आपके पास प्रभु के लिए एक संदेश है, या प्रभु का एक संदेश है। You have the Lord's message. प्रभु का एक संदेश आपके पास है। You have a message from the और वो Lord. संदेश आपके पास रखने के लिए नहीं दिया है, And He has not given it to you to just keep it लेकिन in your देने heart, के लिए दिया है। but to give. ये जो संदेश है वो संसार को देने के लिए आपको दिया है। And this message is so that you can give it to the world. और कैसे देंगे, And how will you give it to उसके them? लिए हमें मेथड भी दिया है। And He has given us a method so that we can give it to the people. 3M, So we have 3 M's. मैसेज, सॉरी, मिशन, Mission, मैसेज और मेथड। सब कोई बोलेंगे। ओके, सो ये 3 बात को हम लोग देखेंगे। so we are going to look at these 3 things. और मिशन में जो लास्ट संडे को हम लोगों ने देखा था, Mission we had looked in the past Sunday. उसमें मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 18 से 20 पद में We had seen it in the Gospel of Matthew from chapter 28, 18 to 20. ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट में देखा था मत्ती उसका 28 We had seen Matthew 28 उसका 18 से 20 पद, from 18 to 20. और उसमें कहता है कि प्रभु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। सो हम लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे समय की कमी की वजह से। सो यहाँ पर 2 चीजों को हम लोगों ने लास्ट वीक देखा था। We had seen 2 things from this verse. चेला का बुलाहट या शिष्यता की बुलाहट में 2 बातों को हम लोगों ने लास्ट वीक देखा था, लास्ट टाइम देखा था। We had learned 2 things from the call for discipleship. प्रभु ने चेला बनने के लिए हमें बुलाया है, God has called us to be disciples, और उसी में ही चेला बनाना भी आ जाता है। चेला बनाने के लिए हमें बुलाया है, and also to call, also He has called us to make और disciples. जो बातें हमें सिखाया है वो मानना हम खुद मानेंगे और दूसरे को मानना सिखाएंगे। And we need to obey what the commandments that God has given us and also teach others to do so as well. सो जो मिशन प्रभु ने हमें दिया है So the mission that God has given us वो चेला बनाने का मिशन बना is to दिया make है। disciples. हम खुद चेला बनेंगे For us to be disciples और दूसरे को चेला बनाएंगे। and to make others disciples as well. ओके, बगल में जो बैठे हैं उनको बोलिए हमें चेला बनाना है। Tell your neighbor we need to make disciples. ये हमारा मिशन है। This is our mission. आइए हम लोग देखेंगे मैसेज।
लंबा सांप था, It was so long, उसका वो भागते हुए मैं देख ही रहा हूँ, and I can just see it running away. और ऐसे लग रहा है मानो उसका पैर है छोटा छोटा, And it feels as if it has little legs. और वो भागते जा रहा And it's trying to run away. वो भाग गया। He ran away. उसके बाद जब मैं ऊपर देखा, And as soon as I saw, मैंने देखा उस सांप के छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे हैं। I saw that it had a lot of tiny kids. मैं नॉर्मली जो है ना, मैं कभी भी वो ये शेयर नहीं करता हूँ जो सपना होता है, Normally I don't really share my dreams. लेकिन ये सपना बहुत ही अजीब लगा मुझे। But this was a very weird dream. तुम्हें आओ कि ये सांप के बच्चे सब ऊपर में हैं, I see all these little snakes up in the sky. और मैं तब नूतन को बताया मैंने ऐसे सपना देखा। I told Newton about this dream. मुझे नहीं मालूम उसका अर्थ क्या है। I don't know what it means. हो सकता है कि शैतान जो है ना भाग रहा है, It felt like maybe Satan is running away. लेकिन धीरे धीरे करके शायद उनके चमचे को भी छोड़ के वो गया है। It feels like he left all his disciples in the air. ओके, सो ये सब जो पूरा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि ये जो है ना शैतान तो भागा लेकिन थोड़ा सा कुछ छोड़ के गया है। Which is why I keep feeling as if Satan ran away from this place, but he left बस something. शैतान हारा हुआ है, हालेलुया। But Satan is defeated. Hallelujah. ओके, सो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। So let's move forward. सो मिशन के लिए जब हम लोग बात करते हैं, When we talk about the mission, हम लोगों ने बोला था कि हमें मिशन के लिए समर्पित होना है। we said that we need to be committed for the mission. इसलिए यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। So Christ, he told us, whoever wants to follow me, he needs to deny himself, bear his cross and follow. और जो संदेश हमें दिया है, And the message that he's given us, वो सुसमाचार दिया है, that is the gospel. वो खुशखबरी दिया है, It's the good news. वो अच्छी खबर दिया है, It's the good news. वो जीवन देने वाला खबर दिया है। It's the news that gives us life. आप मेरे साथ खोलिए Open with me, पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians, उसका पहला अध्याय का 17 से 24 पद को हम लोग पढ़ेंगे। in the first chapter from 17 onwards. यहाँ पर कहते हैं क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं बल्कि सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं है, and not with words of eloquent wisdom, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ कर दे। lest the cross of Christ be empty of its क्योंकि power. क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, For the word of the cross folly to those who are perishing, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। but to us who are being saved, it is the power of God. यहाँ पौलुस कहता है Paul is saying here, परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। God has called me to spread the good news. और पौलुस अपने संदर्भ में कहता है मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं बुलाया है। And in that context, Paul is saying that I have not been called to baptize. बपतिस्मा तो कौन देंगे? Who will give वो baptism? लोकल पास्टर देंगे, That the local वो pastors will शायद give. दूसरे लोग देंगे, The other people might give it. लेकिन मुझे तो सुसमाचार सुनाना है। But I have been called to spread the gospel. क्यों? Why? क्योंकि ये जीवन देने वाला सुसमाचार है। Because this is the gospel that gives life. आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, सब तरफ बीमारी है, Try to imagine with me there's sickness all around. लोग नाश हो रहे हैं, People are dying. लेकिन आपके पास इलाज है, And you have a वो cure. आपके पास वो दवाई है। You have the medicine. आप क्या करेंगे? What will you do? अधिक से अधिक लोगों तक उस दवाई को लेकर के पहुंचेंगे। You'll try to reach as many people as you can. पौलुस मानो यही कर रहा है, Paul is trying to do the same. जितना जल्दी हो सके, As soon as he can, जितना फुर्ती से हो सके, as fast as he मैं can, हर एक व्यक्ति तक पहुंचूंगा, he wants to reach every हर person. एक लोगों के पास वो सुसमाचार को पहुंचाऊंगा। I want to give this gospel, this good news to everyone. और वो सुसमाचार क्या है? And what is the good news? वो मसीह का क्रूस का वो कथा है। It is the word of the cross. और वो क्रूस की कथा बहुत सारे लोग जो नाश हो रहे हैं उनके लिए ये मूर्खता लग रहा होगा, And it is a folly to those who are perishing. परंतु जितने लोग उद्धार पाने वाले हैं But for people who are going to gain salvation, उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ है। it is the power of God. जो क्रूस की कथा, The word of the cross, जो यीशु मसीह मानव जाति के लिए क्रूस में अपना जान दिया, Jesus who died for us in the cross, क्रूस पर यीशु मसीह का मौत,
Jesus' death on the cross, ये उन लोगों के लिए जो परमेश्वर ने उनको बुलाया है, ये जीवन देने वाला है। for the people who have been called by Christ, this gives them life. यीशु मसीह का मृत्यु हमें जीवन देता है। Jesus' death gives us life. वो परमेश्वर का सामर्थ है। That is the power of God. ये सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। This gospel is the power of God. उस सुसमाचार में जीवन है This gospel has life. और इसीलिए पौलुस दौड़ दौड़ के सबके पास जाना चाहता है। And which is why Paul wants to run ओ to क्रूस की everyone. कथा, सुसमाचार, That word of the cross, the यीशु gospel. मसीह आपके पाप के लिए मरा है Jesus has died for your और sins. जितने लोग उसको ग्रहण करते And हैं, whoever receives him, जितने लोग यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, whoever gives their lives to Christ, उनको परमेश्वर को वो सामर्थ मिल जाता है। they receive the power of और वो Christ. सामर्थ क्या है? वो जीवन देने वाला And सामर्थ what है। is the power of God? It gives life. और तपन बोल रहा था, ये शरीर यहीं रह जाएगा। Tapan was saying this body will stay here. हाँ, ये वाला नाशवान शरीर यहीं रह जाएगा। This body which can die, it will लेकिन stay here. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ओ एक दिन हमारा शरीर यहाँ मिल जाएगा, इसके बाद आत्मा में मिलन हो जाएगा। वो लोग कहते हैं। A lot of people, they say this body might be buried or might be burnt, but the soul will meet बहुत सारे someday. लोगों का कॉन्सेप्ट है, मानो जैसे यहाँ पर पानी अगर यहाँ से नदी से बह के चला जाता है, समुद्र में मिल जाता है और समुद्र में पूरा मिल गया, वैसे ही बहुत body. ओ परमेश्वर ने हमें नाश होने के लिए नहीं बनाया। God has not created us to be destroyed. परमेश्वर ने हमें हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी के लिए बनाया है। God has made us so that we have eternal life. और परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया है। And God has made you आपके unique. जैसा कोई नहीं है। There is no one like you. आपका अस्तित्व उसने शुरू किया। Your existence started with आपका God, अस्तित्व हमेशा हमेशा तक रहेगा। and your existence will stay forever and आप ever. परमात्मा में विलीन नहीं हो जाएंगे। You will not go and mix up with God in heaven. लेकिन पास्टर धीरज को जैसे आप यहाँ देखते हैं, But just like you see Pastor Dheeraj here, एक दिन वैसे ही आप देखेंगे। you will see him just like that अंतर one सिर्फ day. इतना होगा, ये नाशवान शरीर में नहीं, लेकिन आप विनाशी शरीर में The only रहेंगे। difference is that you will see him in his Hallelujah. everlasting body. Hallelujah. हालेलुया। कोई बोल सकते हैं हालेलुया।
वो परमेश्वर का सामर्थ है। That is the power of God. ये सुसमाचार में ये सामर्थ है। That is the power of the gospel. इसलिए यहाँ कहता है कि परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। But to us who are being saved, it is the power of क्योंकि God. लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, और समझदार के समझ को तुच्छ कर दूंगा। and the discernment of the discerning I will thwart. कहाँ रहा ज्ञानवान? Where is the one who is कहाँ wise? रहे शास्त्री? Where is the scribe? कहाँ रहा इस संसार का विवादी? Where is the debater of this age? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? Has not God made the foolish wisdom, the wisdom of the world? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार दे। For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. आज बहुत सारे लोग जो ज्ञानवान हैं, A lot of people who are the wise of वो this वाद age, विवाद कर रहे हैं। they are debating. कहाँ है परमेश्वर? Where is God? प्रूव करो परमेश्वर के बारे Prove में। that God is मुझे दिखाओ God exists. परमेश्वर कहाँ है। Show me where God वो is. वाद विवाद करते हैं। They debate. लेकिन एक दिन परमेश्वर उन विवादियों का मुंह को वो चुप करेंगे। But one day he will silence those the wise. वो चुप कर चुका है। He has already silenced यीशु मसीह के them. मृत्यु से पुनरुत्थान सबके लोगों के मुंह को चुप कर चुका है। Jesus' death and resurrection has already silenced the लेकिन wise. फिर भी लोग बोलते हैं। But still people talk. लेकिन परमेश्वर एक दिन सबको चुप करेगा कहता है। But one day God 22 will पद में silence कहता them. है यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं The verse 22 it says, for Jews demand और यूनानी signs ज्ञान की खोज में है, and Greeks seek wisdom. परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते But हैं। we preach Christ crucified. वो लोग चिन्ह ढूंढते हैं, People demand for signs. कुछ ज्ञान की बातें ढूंढते हैं, Some look for wisdom. लेकिन हम एक छोटा साधारण सा चीज लोगों को बताते But हैं। we talk about a very simple thing. एक सुंदर छोटा सा कहानी हम उनको बताते हैं। We tell them of a very beautiful story. वो कथा हम बताते हैं जो आज से 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर में हुआ था। We talk about the story that happened 2000 years ago on the cross. हम ज्ञान की बात नहीं करते, We don't talk about लेकिन wisdom, हम सिर्फ वो क्रूस की कथा की बात करते हैं, but we just talk about the story of the cross. क्योंकि ये क्रूस की कथा हमें जीवन देता है। Because the story gives us life. परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, But we preach Christ crucified. जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण And which is a stumbling block to the Jews और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। and a folly to the Gentiles. परंतु जो बुलाए हुए हैं, But to those who are called, क्या यहूदी क्या यूनानी, both Jews and Greeks, उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। Christ, the power of God and the wisdom of God. हालेलुया। आपके पास ये संदेश है, You have this message. आपके पास वो क्रूस की कथा है You have that story of the cross, जिसके अंदर में परमेश्वर का सामर्थ भरा हुआ है। which has the power of God. वो क्रूस की कथा आपके पड़ोसी को अनंत जीवन दे सकता है। The story of God can give you eternal life. वो क्रूस की कथा आपके आसपास के लोगों को जीवन दे सकता है। That story can give others life. आपके पास एक ऐसा हथियार है, You have that kind of a weapon. आपके पास एक ऐसा कहानी है, You have that kind of a story. आपके पास एक ऐसा दवाई है You have that kind of a medicine जिससे लोगों को जीवन मिलेगा। which हालेलुया, gives people eternal life. हालेलुया। Hallelujah. ये क्रूस की कथा परमेश्वर का सामर्थ है। The story of the cross is the power of जो God. संदेश आपको दिया गया है, The message which has been जो given to you. सुसमाचार आपको दिया The गया good है, news given to you. वो क्रूस की कथा है The story of the और cross. वो लोगों को जीवन देता है। It gives people life. आपके पास जीवनदायक वचन है। You have word which gives life. परमेश्वर ने आपको ये संदेश दिया है This is the message given और to इस you by संदेश के God. साथ आपको उस दूसरे जगह में जाने के लिए बुलाया है। And you need to spread this message. सो सबसे पहले हमारे पास क्या है? शुभ संदेश है, The very first thing, what do you have? We have the good news. खुशखबरी है। The good news. लेकिन उसी के साथ साथ आज ये खुशखबरी में बहुत सारे मिलावट हो रही है।
But at the same time, we also know that we have a lot of different things being mixed into this gospel. आज लोग क्रूस की कथा को छोड़कर कुछ दूसरी कथा सुनाते हैं. People have started abandoning the story of the cross and started spreading some other kind of a story. आज लोग अनंत जीवन को छोड़कर इसी दुनिया की बात करते हैं. Now people have left the story of eternal life and they talk about this world. कैसे इस दुनिया में आप उन्नति करेंगे, The prosperity that you will have in this कैसे world. आप इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा धन हासिल कर सकते हैं, How can you have more and more money in this कैसे world? आपको सफलता मिलेगी. How can you be successful in और this कई world? बार लोग इन सफलता को यीशु के नाम से भी जोड़ देते हैं. And a lot of times they attach all this successfulness with Christ. और बहुत बार लोग ये कहते हैं कि ओ यीशु के पास आ जाओ, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी. And a lot of times people say, if you come to Christ, all of these things will be added to you. लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ठोकता होगा. But Christ must be banging his head right now. हाँ, क्या बोलते हैं, स्वर्ग में बैठ करके वो सिर पटकता होगा. He must be sitting in heaven and banging his head. मतलब क्या बात कर रहे हैं ये लोग. What are you talking about? ये लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह सिर्फ सफलता दे सकता है. They are saying Christ can only make you successful. ये बोल रहे हैं कि इस दुनिया में यीशु मसीह बहुत कुछ दे सकता है. They say that Christ can give you a lot of things in this world. वो यीशु मसीह को हम इस दुनिया तक ही लिमिट कर देते They हैं. have limited Christ only to this world. जो असली काम उसने किया, The real thing, the main thing that he did, जो अनंत जीवन की बात उसने किया, when he talked about eternal life, उसको तो हम भूल जाते हैं. we have completely forgotten about उसको तो that. हम बताते नहीं We हैं. don't even share about it. यीशु मसीह सिर ठोकता होगा. Christ must be banging असली his वाला head. ही छोड़ दिया. They left the main इमेजिन thing. कीजिए शुभम के घर में कोई मेहमान आए हुए हैं. Just try to imagine there are guests in और Shubham's home. अनफॉर्चुनेटली लिली जो है ना इमरजेंसी काम से वो स्कूल चली जाती And है. unfortunately, Lily had to run to उसने school. कहा सब खाना मैंने बना करके रखा है, यहाँ चिकन है, यहाँ मटन है, यहाँ ये है वो है, सब तुम खाना इनको खिला देना. जब खिलाते रहोगे शायद मैं वापस आ जाऊंगी. She said, I have cooked everything for you. All the dishes are prepared. As soon as you guys start eating, I think I'll be लेकिन back लिली का home. देरी हो गया. But Lily got delayed. थोड़ा मेहमान भी थोड़ा जल्दी में थे, The guests were also in a hurry. खाना खा के चले गए. They ate the food and left. जब लिली वापस आ जाती है, When Lily came back देखती home, है मटन तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है. she saw that one of the dishes has not been वो eaten चिकन yet. भी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है. Chicken is also left. अरे तुमने मेहमान को खिलाया क्या? What did you feed them? उसने कहा कि मैंने तो चिकन खिलाया, He said, I fed them लेकिन chicken. चिकन तो घटा नहीं. But the chicken at home, it's not नहीं, मैंने तो reduced चिकन yet. खिलाया बल्कि वो खत्म हो गया. दोनों मिल करके खा के खत्म कर दिया. No, I fed them chicken and they finished it also. अरे कौन वाला चिकन खिलाया? What chicken did you कहाँ से feed मिला them? आपको वो Where चिकन? did you find it? वो जो फ्रिज में नीचे डाला हुआ था. The chicken in the fridge, it was कौन kept जगह inside. में? Where? नीचे वाला में. It was kept down. और सिर ठोक के बोलते, अरे ये तो परसों दिन मैंने बनाया था. And she will be horrified and she'll say, I made that day before yesterday. वो तो पास्टर सुशील लोग के लिए बनाया था, वो लोग खा करके बचा दिए, वो वाला था. I made them for Pastor Sushil and they ate it. तुमने फ्रेश वाला को नहीं खिलाया. Why didn't you give them the fresh one? ऊपर से मटन नहीं खिलाया. And on top of that, you didn't feed them mutton. मेरे उड़ीसा के लोगों को मटन नहीं खिलाया. My people from Odisha, you did not feed them mutton. अरे उड़ीसा के लोग तो मटन के बिना जी नहीं सकते हैं. People from Odisha cannot live without mutton. और तुमने मटन ही नहीं And you खिलाया. did not feed them mutton. मन तो करता है मैं तुमको तलाक दे दूं. नहीं. ओके, सो कहने का मतलब ये है कि कई बार जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, The thing I want to say is that a lot of times when we preach the gospel, हमको लगता है कि हम सुसमाचार सुना रहे हैं. we might be thinking we preach हमको the लगता है कि gospel. हम मेहमान को खाना खिला रहे हैं. Maybe we are feeding the people, लेकिन गलत वाला खाना खिला but रहे we हैं. feed them the wrong things. गलत वाला सुसमाचार We सुना give रहे them the हैं. wrong news. ओ यीशु मसीह आपको ये देगा वो देगा, यीशु मसीह आपको सफलता देगा. God will give you this and that, and He'll make you लेकिन असली successful. वाला को हम छोड़ देते हैं. But we forget the real deal. जिस असली काम के लिए प्रभु इस दुनिया में आए, The main thing why Jesus
Jesus came to this world, मनुष्य जाति को जीवन देने के लिए आया, the main thing that he came to give us life. उनको अनंत जीवन देने के लिए आया, He came to give us eternal life. और आप तो इसी दुनिया का सिर्फ बात करते हैं। And you just talk about this world. वो कहता है पहले अनंत जीवन को प्राप्त कर लो, इस दुनिया में जो चाहिए उसको तो मैं दूंगा ही दूंगा। First, you get the eternal life, and then the things of this world will be added to इस you. दुनिया की चीजें तो मैं तुमको बोनस में दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पिछली बार मैंने कहा ना, इस दुनिया की चीज को परमेश्वर कैसे बोनस के रूप में हमें देना चाहता And है। the things of this world, Jesus will give it to you in bonus. पगार होता है और बोनस होता है। हालेलुया। The salary is your salary, but the bonus is the bonus. कौन वाला ज्यादा होता है, Which one is more? पगार कि बोनस? Your salary or bonus? किससे आपकी जीवन चलती है, पगार कि बोनस? How do you live your lives, with your bonuses or your salaries? कौन ज्यादा होता है, पगार कि बोनस? Which is more, your salary or your bonus? आप पगार को छोड़कर बोनस के पीछे भागेंगे, If you run after your bonuses more than your salary, क्या होगा? क्या होगा आपको? ओके भाई समित, यहाँ तो कोई नहीं है आपके कंपनी में काम करने वाले, अगला बार से उनको सिर्फ बोनस दीजिए, पगार मत दीजिए। कौन है? जुदो जिद्दा, अच्छा जुदो जिद्दा, आप तो हैं इधर। okay, Brother Samit, I can see that you have one of your employees here. So if you just give them their bonuses instead of giving them their salaries, what will কি আপনি happen? কি বলছেন? What are শুধু you শুধু saying? চলবে, শুধু বোনাস দিয়ে চলবে? Will that work? नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा अमित। ओ अच्छा, इनकी कंपनी में बोनस नहीं है। Which is why they don't have bonuses in their company. हालेलुया। प्रभु कहता है उसके राज्य और धार्मिकता की पहले खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। You run after the righteousness of God, and all these things will be added to हमें you. सही संदेश को देने की जरूरत है। We need to give them the right हमारे message. पास सुसमाचार है, We have the good news. हमारे पास खुशखबरी है, We have the gospel. लेकिन सही खुशखबरी को हमें देना है। But we need to give them the right gospel. इसीलिए इफिसी 4 उसका 14 और 15 में कहता है, इफिसी उसका 4 14 और 15, Which is why in Ephesians chapter 4 from 14 and 15 it says, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. जानते हैं ये ठग विद्या, Do you know about these deceitful schemes? वो चतुराई आप जानते हैं? That cunningness, do you know about that? हम लोग ये कभी कभी इस्तेमाल करते थे जब हमारे बच्चे छोटे थे। We used to use that a lot when our children were small. हाँ, कभी कभी जो है ना उनको कुछ ना कुछ ठग करके हम थोड़ा सा उसको शांत कर देते थे। We used to kind of lie to them and try to get them to be quiet. मान लिया डॉल जा रहे अचानक से गिर गए, रोना शुरू कर दी। Maybe my daughter, if she was walking and if she fell sometimes, she started crying. तब जा करके नूतन जा करके बोला, अरे यहाँ पर चूहा, वो देखो चूहा तुमको गिराया, मार देंगे, वो तो भाग गए थे, ऐसे करके हाँ करके ठगा जाती थी। You remember my wife used to go to her and she was like, oh, there was a rat there, which was why you fell, you hit that rat, and she'll just stop crying. अजय इवान को कभी ठगते हो कि नहीं? Ajay, do you try to do that for Ivan? ओके, कभी कभी ठगा जाते हैं ना, And sometimes it works. उसको चोट लगी, If they get hurt, वो रो रहे हैं, if they're कुछ crying, झुनझुनिया बजाना शुरू कर दो, you start using a tambourine, हैं, playing a tambourine. बस उधर, हाँ, They ठग get विद्या। distracted. कई बार जो है ना हम लोग वो ठग विद्या के पीछे इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम लोग बच्चे से बड़े नहीं होते हैं। Sometimes we fall into these deceitful schemes because we don't grow up from our childhood अभी state. डॉल के ऊपर में ठग विद्या नहीं चलने वाला है, Now Jyotsna will no longer be influenced वो by अभी all of उल्टा this. पापा को पढ़ाती है। She starts teaching her own father. कभी कभी जो है ना वो मेरे को उल्टा पढ़ाती है अभी तो। Sometimes she starts teaching me also. कई बार हम लोग जो है ना इसीलिए ठग विद्या में फंस जाते हैं क्योंकि हम बच्चे ही रहते हैं। And a lot of times we fall in these deceitful schemes and scams is हम because we प्रभु don't के grow संग up. हम प्रभु के संग यात्रा में हम मैच्योर नहीं होते हैं, We do not mature ourselves in our journey with Christ क्योंकि अभी भी दूध पीते हैं, हम अभी भी सॉलिड फूड नहीं खाते हैं। because we still are drinking milk and we can't have solid food.
अभी भी जो पास्टर यहाँ पर संडे हमें बताते हैं बस उसी से गुजारा कर लेते हैं। The food that the pastor gives each Sunday morning, that is how we live our lives. अभी भी वो संडे को जो चर्च सर्विस के बाद जो लंच मिलता है उसी से गुजारा कर लेते हैं। The Sunday lunch that we get at church, that is how we just survive and live our कितने लोग lives. ऐसे करते हैं? How many of you do that? संडे को यहाँ जो खाना मिलता है, The food that you get on Sundays, कितने लोग एक्साइटेड अबाउट संडे का खाना? how many of you are excited बीच about बीच में Sunday चिकन भी lunch? मिलता है, Sometimes you get chicken, कभी कभी खिचड़ी मिलता है। sometimes you get khichdi. इमेजिन कीजिए, जो कि अजय तो खाता ही नहीं है, इमेजिन कीजिए कि अजय को सिर्फ वो खिचड़ी के ऊपर निर्भर होना पड़े। Ajay does not like the food here, but just imagine Ajay has to just live with the khichdi with we serve in क्या church. होने वाला है वो? What will happen to him? वो दुबला पतला हो जाएंगे। He'll get all skinny. इसके बाद वर्षा की मम्मी बोलेगी बाबू की होलो हैं? And then Varsha's mom will tell him, child, what तुम happened? रोगा हो गए छे। Why are you so skinny? हाँ, आप संडे को वो जो खाना यहाँ बनता है वो एक शाम के लिए बनता है, बाकी समय आपको खाना है। The food that we get in church, that just happens for once a week, and that too for lunch. You need to eat more as well. आपको हर दिन खाना है, You need to eat every हर दिन day. प्रभु का वचन को You need पढ़ना है, to read the word of हर दिन God. प्रभु से सुनना है, You need to hear from the हर दिन Lord. प्रभु के संग संग चलना You है, need to walk with the Lord तब every आपका day. जीवन तारो ताजा रहेगा That is when your Christian life will remain fresh, और आप बढ़ेंगे, and that's how you will आप बड़े grow. होंगे, You will grow up, अब बालक नहीं रहेंगे, and you will no longer आप be a mature हो child. जाएंगे। You will mature in your किसी का Christian life, ठग विद्या आपके ऊपर में नहीं चलने वाला and है। हालेलुया। man's deceit will not work on you. कई बार हम लोग विश्वासी लोग नहीं बढ़ते हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर में लोग ठग विद्या चलाती हैं। A lot of times we don't grow up because of which man's schemes they work on us. उसके बजाय क्या कहता है 15 पद में, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उनमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। Verse 15 it says, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is कितने the लोग head, बढ़ना into चाहते Christ. हैं? Who all want to grow up? कितने लोग बढ़ना चाहते Who हैं? all wants to grow up? कितने लोग बड़ा होना चाहते Who हैं? wants to grow up? कितने लोग उछलना चाहते Who हैं? all want to कितने jump? लोग दौड़ना चाहते हैं? Who wants to run? कितना बुरा लगता होगा जो छोटे छोटे बच्चे जो गोद में रहते होंगे, दूसरे लोग को दौड़ते हुए देखते हैं और वो लोग वहीं पर ऐसे करते रहेंगे। The babies when they are in your laps, sometimes they might be feeling sad because you see other kids running around and they can just sit in people's laps. आपके पास सिर्फ संदेश नहीं लेकिन सही संदेश होना है, You just don't need the gospel, but you need the right gospel. और नहीं तो ऐसा ना हो, नहीं तो जो झोला छाप डॉक्टर जैसा हो जाएंगे। Otherwise, you'll just be one of those. झोला छाप, you know those village doctors, झोला छाप, you know that, okay, right? झोला छाप वाले क्या होते हैं? वो कभी ये बीमारी का दूसरा इलाज कर देते हैं। What kind of doctors are they? They give medicines for some other disease. झोला छाप तो छोड़िए, यहाँ पर एक डॉक्टर मुझे मारने वाली थी, बहुत पहले की बात है। एक डॉक्टर यहाँ पर मुझे मारने वाली थी। Oh, there was a doctor. I don't know about the village doctors, but there was this doctor in the city that wanted to murder me. उनको बिना ये टेस्ट से पता चला कि मुझे मलेरिया हुआ है। Without any tests, she was like, "You have malaria," मलेरिया दवाई दे दी, and she gave me medicines. खाते साथ मेरा तो पूरा शरीर में रिएक्शन शुरू हो गया। And as soon as I had that medicine, a bad reaction उन started. दिनों में ना फोन होता था ना कुछ होता था, And we didn't have any phones at that time. किसी रीति से नूतन अप्रोच करके ब्रदर पीजे जोसेफ जो हमारे डायरेक्टर थे उनको बताए, वो दौड़े दौड़े आए, हमको एजी में ले गए, ऐसे जा करके मेरा जान बचाए। And Nutan, in a very difficult situation, she went and she contacted the director at that time, and he rushed me to the hospital and he saved my life. आप झोला छाप डॉक्टर मत बनिए, You don't become that kind of a doctor. आप ऐसे शुभ संदेश दीजिए जो सचमुच में लोगों को जीवन दे सकता है। You हालेलुया। give them that kind of a good news which gives them eternal life. सही शिक्षा, The right gospel. पहला तिमोथी उसका 6:3-5 कहता है। पहला तिमोथी 1 Timothy chapter 6 from 3 to 5 it says, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उससे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है
जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्य के व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। If anyone teaches, ठीक है, मत पढ़ो। सो यहां पर कहता है कि हमें खरा उपदेश को करने की जरूरत है। here it says you need to teach the right doctrine. सो हम लोग कमिटमेंट जो मिशन जो लक्ष्य के लिए मिशन के लिए प्रभु का बुलाया है उसके लिए हमें कमिटेड होना है। So the mission that God has called us for, we need to be committed to it. और जो मैसेज हमें दिया, जो संदेश दिया है, उसमें क्लैरिटी होना है। And the message that He has for us, we need to have clarity in it. जल्दी से हम लोग तीसरा जो ना मेथड के ऊपर बातचीत करेंगे। Very quickly, we'll talk about the method. ये मेथड जो है ना वो ट्रांसफरेबल होना है, This method needs to be transferable. हस्तांतरणीय। Needs to be transferable. सॉरी यहाँ पर नहीं है, नहीं तो मैंने वो दिखाया था जो रिले रेस होता है, देखें। Do you know about relay races? एक छड़ी दूसरा व्यक्ति को दूसरा को वो छड़ी देते हैं। You have a baton and it gets passed on to the next person. उस रिले रेस की सफलता इस बात में है कि ये व्यक्ति अपना छड़ी अगला व्यक्ति को कितना अच्छा से दे पाता है। The successfulness of the race, it depends on how well the baton is passed. हमें भी प्रभु कहीं ना कहीं उस रिले रेस जैसा बुलाया है। And in the same way, God has called us for a relay race. कैंपस क्रूसेड की सफलता के पीछे एक वजह है। There is one reason for the successfulness of Campus बहुत Crusade. सारे वजह हो सकते हैं, It can be a lot of लेकिन different उनमें से things. एक वजह ये है, But one of the reasons is that डॉक्टर बिल ब्राइट शुरू से ही उसने एक ट्रांसफरेबल कॉन्सेप्ट को तैयार किया। Dr. Bill Bright, he prepared a transferable concept from the very beginning. जो मैं ही कर सकता हूँ What I can do, वो अगला भी कर सके। the next can do too. ओके, ये ट्रांसफरेबल कॉन्सेप्ट है। This is the transferable concept. जबकि हमारा हिंदुस्तान उसका उल्टा पर विश्वास करता है। But our India, it believes in the complete opposite. हम लोग मास्टर बने हुए रहना चाहते हैं, We want to remain the master forever. गुरु बने हुए रहना चाहते Yeah, हैं, we just want to be teachers. विश्व गुरु। ओके, हाँ, सो गुरु बने हुए रहना चाहते हैं। और ये गुरु क्या बोलेगा? And what will this master say? मैं अपना चेला को सिर्फ 9 ही सिखाऊंगा, I will teach my students only 9 out of 10 things. क्योंकि अगर 10 सिखाया तो हमसे आगे निकल जाएगा, Because if I teach them all 10, he will surpass me. इसीलिए 9 ही सिखाऊंगा। So I will just teach them 9. अब नेक्स्ट जनरेशन का गुरु के पास कितना तालीम है? And the next generation master has how many? 9 है। He just has 9 पहला वाला lessons. के पास कितना था? 10 था। The first had 10. अभी वाला के पास कितना है? 9 है। The master has 9. अब ये गुरु बोल रहा है And this master is saying, अपना चेला को मैं 8 ही सिखाऊंगा। I will teach my disciples only बात 8. समझ रहे हैं तो? Do you understand? और धीरे धीरे करके 5वां 6ठा पीढ़ी आते आते उनके पास क्या है? कुछ नहीं बच रहा है। And after a while, you will see that the masters have nothing to teach. लेकिन परमेश्वर इस पर विश्वास नहीं करता है, But God does not believe in this. वो ट्रांसफरेबल कॉन्सेप्ट पर विश्वास He करता है। believes in a transferable और इसीलिए concept. दूसरा तिमुथी दूसरा अध्याय का 2 पद में ऐसे लिखता है, Which is why in 2 Timothy chapter 2 verse 2 it says, हम मेथड की बात कर रहे हैं, we are talking about the method. हम किस मेथड से ये सुसमाचार को आगे बढ़ाना है, In which method should we transfer this किस gospel? मेथड से हमें ये मिशन को कंप्लीट करना है। Which method should we use to complete this mission? यहाँ कहता है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दें जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. ओके, यहाँ पर मैं 6 लोगों को सामने बुलाना चाहता हूँ। I want to call 6 people to the ओके, front. 6 लोग, कोई लोग आ जाइए, दौड़ के जल्दी से आइए। 6, any समित आ 6, जाओ, just come to the front. समित आओ, सुबह माँ, चलो, हाँ, और लोग आ जाओ इधर से, कोई भी। ओके, ठीक है। यहाँ पर पौलुस, मान लिया थोड़ी देर के लिए समित, चलो तुम पौलुस जैसा दिख रहे हो, इधर आओ। मान लिया पौलुस है ये, हाँ, ठीक है। Let's just imagine that he is Paul. ओके, पौलुस, अच्छा तुमको तिमोथी बना देते हैं। ओके, ठीक है, Okay, ये you can be तिमोथी है, Timothy. ठीक है, इधर। ओके, पौलुस किसको बोल रहे हैं? Paul is telling who? तिमोथी को बोल रहा है। He's telling Timothy. वो बोलता है जो बातें
He says, the things that you've heard, बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, that you've heard from me in the presence of many witnesses, वो विश्वासी मनुष्य को सौंप दीजिए। entrust to faithful men. ये चीज This thing तिमोथी to Timothy, ऐसे व्यक्ति को सौंपो give this to those people जो विश्वास योग्य है, who is faithful, जो अच्छा से पकड़ के रखेगा, who will hold on to it, जो जिम्मेदारी को अच्छा से निभाएगा। who will fulfill his responsibility. ऐसे व्यक्ति को ये देना है। Give them to that kind of a person. तो मिला उनको कौन? अंशुल। ओके, ठीक है, वो अंशुल को देगा। So he will give it to Anshul. और वो अंशुल उसको गाड़ने के लिए नहीं दे रहा है, And he is not giving it to Anshul so that he can bury it. वो बोलता है कि तू विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को सिखा पाए। It says, entrust to faithful men who will be able to teach others हाँ, also. तो ऐसे विश्वासी योग्य को सौंपो जो औरों को भी सौंपे। So give it to faithful people who will also be able to teach it to So others. ये बोलना चाह रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल कॉन्सेप्ट। This is called a transferable concept. इसने ट्रांसफर कहाँ किया? तिमोथी को किया, He transferred it to Timothy, और तिमोथी ने क्या किया? विश्वास योग्य मनुष्य को सौंप दिया and Timothy entrusted it to faithful people, और वो दूसरे को सौंपा। and he gave it to others. और ऐसे करके सुसमाचार जो है ना हमारे पास आया है। And this is how we have received the समझ में आ gospel. रहा है? Do you understand? ये कैंपस क्रूसेड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। This is a very important lesson from Campus आप Crusade. सब चीज भूल जाइए ये, लेकिन ये बात मत भूलिए, 2T22 You can forget everything else, but don't forget this. 2T22. बोलिए 2T22 You have to say it. 2T22. 2T22 क्या है भाई 2T22? What is it? बोलिए बगल वाले व्यक्ति को बोलिए 2T22। Tell your neighbor 2T22. आज के बाद से इस पूरे सप्ताह में जब भी आप किसी को मिलेंगे जय मसीह की मत बोलिए, उसको बोलिए 2T22। Whenever you meet someone this week, you don't tell them praise the Lord. Tell them 2T22. ओके, आपके पति अगर यहाँ नहीं आए हैं, घर में हैं, वापस जा करके आपको देखते साथ उनको बोलिए 2T22। As soon as if your husband or your wife is not here, you go home, you tell them 2T22. क्या है भाई 2T22? What is this? दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 2 पद। 2 Timothy chapter 2 verse 2. क्या लिखा हुआ है दूसरे अध्याय में? What दूसरे is पद written में, there? जो बातें तुमने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी What you वो have- ऐसे विश्वास योग्य मनुष्य को सौंप दे जो दूसरे को भी सौंप सके। What you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who teach it to दिस others इज द also. मेथड। This is a method. ये मेथड से हम लोग प्रभु का मिशन को पूरा करेंगे। This is how we fulfill the mission. इसका मतलब This means ये छड़ी अगर मेरे हाथ से अगर लेट्स से समित के हाथ में चला गया, if this baton, if I pass it on to Samit, रिले रेस इमेजिन कीजिए, imagine it's a relay कौन है race. रिले रेस में? कौन कौन? Who are there in the relay race? पास्टर सुशील है, Pastor Sushil is there, समित है, Samit's there, शुभम है, Shubham's there, अंशुल है, Anshul's there, और वो दादा है क्या? सुधीर दा है। ओके, सुधीर दा है। and ओके Sudhir Da is there. ओके, रिले रेस कंप्लीट तभी होगा जब पास्टर सुशील के यहाँ से दौड़ते हुए रिले रेस किसके पास जाएगा? सुधीर दा के पास जाएगा, और वो आखिरी निशाना को पहुंचाएगा। Relay race is only completed when the baton is finally in Sudhir Da's hand and he पास्टर finishes the सुशील भाग race. रहा है, Pastor Sushil is running. ओ समित रेडी हो रहा है, Samit's getting ready. भागने के लिए रेडी हो रहा He's है। getting ready to run. जैसे उसको मिल गया As वो soon as he बैटन, has the baton in his वो hand, भागना शुरू he किया। starts running. वो भाग रहा है, He's running. वो भाग रहा He's है। running. अब पास्टर सुशील बूढ़ा हो गया इसीलिए नहीं भाग रहा है अब। हाँ, And okay. Pastor नहीं, Sushil's gotten old, so he's not running नहीं, anymore. अपना काम पूरा किया है, अब भागना नहीं है इसको। No, he's already finished his अब वो mission, भाग so he रहा है, does not have शुभम to को पकड़ाता run. है। Now he passes the baton to ओ Shubham, शुभम उसको पकड़ लिया, and Shubham's held on to it. और इसके बाद वो भाग रहा है, And now he वो starts भाग रहा running. है। He's running. किसको पकड़ाया? Who will he pass it on अंशुल को to? He पकड़ाया, passes on to वो पकड़ते Anshul. पकड़ते गिरा दिया। And Anshul drops it. जा नहीं, अंशुल ने नहीं गिराया, No, Anshul did not वो drop गिर it. रहा था लेकिन He फिर भी was- उसको उठा He लिया। almost made it fall, but he picked it back up. गिराना नहीं है। We don't drop it. जो सुसमाचार आपको हम दे रहे हैं The gospel that is being passed on to वो you, गिराना नहीं है, do not drop it. और वो गलत सुसमाचार को भी नहीं मिलाना है, And we should not mix up the false गिराना gospel. भी नहीं है,
We should not drop the gospel और मिलाना भी नहीं है, and we should not mix पूरा the other खाटी। stuff in the gospel. ओके, खाटी। Should जैसे be जो pure. कोलकाता में दूध मिलता है वो वाला दूध नहीं, The milk that we get in Kolkata, जिसमें not, लोग the, पानी not like मिलाते that. हैं। The milk which has water mixed in it. हम उस मधु की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें चीनी का घोल मिलाते हैं। We are not talking about the honey which has sugar हमारी mixed in it. चाय, किरोम चाय, खाटी। Our tea, what kind of a tea? Pure नो नो tea. नो नो, हमार की चाय, Oh, हमार खाटी चाय। we want something that is pure. Okay, Bengali. That's okay, no problem. खाटी चाय। We want pure things. परमेश्वर का वचन में कोई मिलावट नहीं होगा। There should be nothing mixed in the gospel. जो चीज आपको दिया जा रहा है What is being given to you, वो ऐसे लोग को देंगे we should hand it over to someone जो दूसरे को भी सिखा सके। who can teach it to others also. और ये जो सिखाने का ये में जर्नी में And this process and this journey of teaching, वो खाटीपन रहना है, the pureness should be there, the purity should be there. राइट? इसीलिए हम लोग अभी शिष्यता का जो कोर्स कर रहे हैं, जो डिसाइपलशिप कोर्स कर रहे हैं, एफटीटी कोर्स कर रहे हैं। Which is why we are doing the discipleship course, the FTT course. I'm sorry, बहुत लेट हो रहा है। ओके, कितने लोग जो एफटीटी में भाग लिए? How many of you have participated in FTT? आइए इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा Let's दें। clap for them. ओके, इन्होंने इतिहास को शुरू किया, खड़ा किया है। हमारा मतलब एक इतिहास का पहला जो माइलस्टोन को वो लोग सेट किया है, मतलब They have set the milestone for history. ओके, पहला खंबा को वो लोग गाड़ा They have started, they have, फर्स्ट पिलर। ओके, ठीक है। और बाद में बाकी आपको भी खंबा खड़ा करना ही है, and you too have to participate in it. सबको खंबा खड़ा करना है। Each and every one सबको have to be FTT करना pillars. है। Everybody has to do अगला FTT. सप्ताह से हम लोग बुक 2 एंड बुक 3 हम लोग आगे करने वाले हैं। From next week we are going to start book 2 and book 3. उसको भी आपको सबको शामिल होना है। And all of you have to क्यों participate. करते हैं ये? Why do we do this? क्योंकि जो सुसमाचार हमें मिली है Because the gospel that we have वो received, हम आपको दे सके, so that we can pass it on to you. और इसीलिए आपको कोर्स करना है And this is why you have to do the course. ताकि जो सुसमाचार आपको मिल रहा है वही सुसमाचार आप दूसरे को सिखा सके। So that the gospel that you are receiving, that gospel you can pass it on to others. कोई मिलावट नहीं, No mix-ups. वही सुसमाचार आप अगला को सुनाएंगे The same pure gospel you teach to और others. अगला भी उसी सुसमाचार को अगला को सुनाएंगे। And the next can teach the next. इसीलिए सबको एफटीटी करना है, फुलफिलिंग द टास्क। And so everyone needs to do the course. और ये कोर्स जो है ना, अगर फाइनल कोर्स तक आप जाएंगे कम से कम 2.5 साल लगने वाला है। And if you go till the last book, it will take you about 1.5 years. ओके, 2.5 साल, 2.5 years। 2.5 years. 2.5 साल की यात्रा में आप लोग कुछ लोग शुरू किए हैं। And you have started this journey for 2.5 years now. इसका मतलब सिर्फ 6 महीना ही हुआ है आपके लिए। This means you've just had 6 months. अभी 2 in साल your बाकी journey. है। 2 years is और left. जब वो कंप्लीट करेंगे And when you complete it, तब जा करके आप प्रभु के इस मिशन में अपने आप को तैयार पाएंगे। that is when you will find yourself prepared to do the mission that God has called you for. तब जा करके आप जानेंगे आपके पास जो मैसेज है वो ओरिजिनल है। And that is when you will know the message that you have, that is the original message. और जब आप वो अंतिम पड़ाव तक जा सकेंगे तब भी जा करके हम ये विश्वास करेंगे, हाँ आप ये ट्रांसफरेबल कॉन्सेप्ट को आप अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। And when you reach the final steps, that is when you can use this transferable concept for others as well. समझ में आ गया? Do you understand? ट्रांसफरेबल कॉन्सेप्ट, The transferable concept, हमें ट्रांसफर करना है, we need to transfer it. वो पावर को ट्रांसफर करना We है। need to transfer the power. ट्रांसफार्मर नहीं होता तो शायद आपके घर में आज बिजली नहीं If we जलती। didn't have transformers, maybe we would not have वो electricity in the house. ट्रांसफर होना है, ट्रांसफर होना है, The message, it needs to be transferred. और उसके लिए आपको एफटीटी में शामिल होना है। And for that, you need to participate in FTT. गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष देने पाए। थैंक यू।
हेलो चेक ओके थैंक यू पास्टर जी हमें वचन से इतने अच्छे से सिखाने के लिए। मैं उसमें आऊँगा मगर इससे पहले जैसे हम लोग गीत गा रहे थे और मैं बोल रहा था कि এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই, এই আছে এই নেই। আমি যখন গির্জে বসছিলাম আমাদের এক দুজন স্টুডেন্ট লিডার ছিলেন, দুই বোন, তাদের মানে আমাদের গ্রুপে টেক্সট আসলো, তো আমাকে সাথী ফোন করেছিল যে তাদের মার ক্যান্সার ছিল, জাস্ট কিছুক্ষণ কালকে রাতে হাসপাতালে নিয়ে গেছিলো, আজকে কিছুক্ষণ আগে মারা গেলেন। তো জীবনের কোনো গ্যারেন্টি নেই, খুব বয়স্ক ছিলেন না কিন্তু জীবনের কোনো ইয়ে নেই। আর পাদ্রীবাবু যখন বলছিলেন আমি দেখছিলাম এখানে বিশেষ করে 2 তিমথি 2 অধ্যায় 2 পদ থেকে 4 পদ এখানে বলছে, বহু শ্রোতার মাঝে যখন আমি প্রচার করেছি সেই প্রচারে যে শিক্ষা তুমি লাভ করেছো সে কথা তুমি এমন যোগ্য লোকেদের দান করো যারা আরও বহু লোকের কাছে সেই শিক্ষা বিতরণ করবে। এটা উনি বললেন। আর তারপরে যদি দেখি এবার তারপরে সাধু পৌল বলছে, যীশু খ্রিস্টের সুযোগ্য যোদ্ধার মতন তুমিও সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা বরণ করো আমার সাথে। অ্যাকচুয়ালি এখানে বাংলায় লেখা নেই, বাট আমি যেই দুঃখ যন্ত্রণা পেয়েছি প্রভু যিশুর জন্য সেটা। আর আমি যখন এটা দেখছিলাম 4 পদে আসার আগেও, যে আমাদের এক ভাই আছে মালদাতে, সে প্রভুর কাজ করে, আর তার প্রভুর কাজ অদ্ভুত, আমাদের মতন না, আমাদের কাজ একটু সফিস্টিকেটেড কাজ। তো যেমন আমরা ও এসেছিলো ট্র্যাক্স নিতে, 6 পেটি ট্র্যাক্স একা নিয়ে যাবে। ও ট্র্যাক্স বিতরণ করে টোটোতে করে আর সুসমাচার দেয়। তো 6 পেটি ট্র্যাক্স নিয়ে যাবে একা। তো আমরা বললাম যে রিজার্ভেশনে যা, যে না রিজার্ভেশন করলে তো 300 টাকা খরচা হবে, আমি জেনারেলে যাব, তাহলে ওই বাকি যে আমার কাছে 200 টাকা বাঁচবে সে 200 টাকা থেকে আমি কিছু খেয়ে নেবো, আর ওটা কোথাও যদি পরে প্রচার করতে যেতে হয় যাবার। তো ও কী করে, ও চলে যাবে কোনো জায়গায়, ও মানে ওই প্রথম শতাব্দীতেই থাকে। ও হঠাৎ করে মনে হলো পাকুড় যাবো, পাকুড় চলে যাবে, পাকুড় গিয়ে ওখানে খোঁজ করবে কেউ বিশ্বাসী আছে, যে বিশ্বাসী আছে তার বাড়ি চলে যাবে, খোঁজ পেলেও চলে যাবে, গিয়ে বলবে যে আমি আপনার এখানে সুসমাচার দিতে চাই, এরিয়ায় আপনার বাড়িতে আমি 1 সপ্তাহ থাকতে চাই এবং সুসমাচার দিতে চাই। এবার তারা তাকে যেখানেই থাকতে দেবে, যদি খেতে দিল খাবে, যদি না খেতে দিল 2-3 দিন না খেয়েই থাকবে, প্রচার করে বাড়ি চলে আসবে। কখনো ওর সঙ্গে আমার খুব কষ্ট হয় কাজ করা। কেন, আমি যখন আমরা কি হয়েছে कोलकाता सॉफिस्टिकेटेड काज, हमारा काम क्या है सॉफिस्टिकेटेड। हम लोग अच्छा देखेंगे, प्लान करेंगे कौन सा ट्रेन है, कौन ऐसे है, ऐसे करके हम लोग काम करते हैं हमारा। तो उसके साथ बड़ा डिफिकल्ट, वो हर विषय में लगता है वो शायद जज नहीं कर रहा कि उसको तो कुछ नहीं चाहिए, वो करता है। तो সুসমাচারের ক্ষেত্রে যন্ত্রণার খুব 4 পদ বলছে, এটা আমি এটা বলার জন্য অ্যাকচুয়ালি মেন এটা 4 পদ বলছে, যিনি বিশ্বস্ত সৈনিক সে তার নিয়োগকর্তা সেনাপতিকে খুশি করতে চায়। সে অসামরিক মানে যেটা ওয়ারফেয়ার বা যুদ্ধ রিলেটেড ব্যাপার না, সেই সব ব্যাপারে সে জড়ায় না। ইংরেজিতে খুব সুন্দরভাবে ইয়ে আছে, আমি জাস্ট এটা পড়ে আমরা ইয়ের জন্য গান করবো, অফারিংয়ের জন্য। ইংরেজিতে যদি দেখি, ইংরেজি এইভাবে বলছে, নো সোলজার ইন অ্যাক্টিভ সার্ভিস, no soldier in active service entangle himself in the affairs of everyday life so that he may please the one who has enlisted him as a soldier। तो আমরা যখন আজকে চ্যালেঞ্জ पादरी बाबूर দ্বারা পাচ্ছিলাম, हमारे पास्टर के थ्रू से हम चैलेंज मिल रहे थे, one of the reason we are not able to do because we are entangled। उसी में एक शब्द के बाद entangle, और हम लोग we don't want to take the pain। मगर मैं बोलना चाहता हूँ दाऊद जैसा, the one who has walked in his ways, 25 Psalms का 25, the one who has walked in his ways, he knows his ways are truth and mercy। तो जो उनके राह में चला है वो जानता है मजा क्या है उसमें, जो नहीं चला है उसको दूर से वो तकलीफ ही दिखेगा, मगर जो चला है पौलुस जैसे वो। धन्यवाद हमें फिर से और एक बार उत्साहित करने के लिए। आइए हम लोग यीशु के लिए जिए पूरे तरीके से। हम गिरेंगे कोई बात नहीं, righteous men will fall 7 times but will rise up again to stand for the gospel। ये गीत बहुत ही अच्छा गीत, शायद आप लोग कोई जानते हैं नहीं जानते।
मैं चाहता हूँ जब हम लोग ऑफरिंग कलेक्ट करते हैं ये गीत को गाएंगे, और मैं चाहता हूँ आप लोग इसमें मगन कीजिए। बोलता है, दिल को ये ख्याल सताता है बार बार, हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार। दिल को ये ख्याल सताता है बार बार, दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार, हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार। दिल को ये ख्याल सताता है बार बार, हाँ दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार, हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार। दिल को ये ख्याल सताता है बार बार, हाँ दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। हमने गुनाह पर गुनाह की, उसने उसका कीमत दी, वो हमारे खातिर क्रूस पर जान दी। हमने गुनाह पे गुनाह की, उसने उसकी कीमत दी। हाँ हमने गुनाह पे गुनाह की, उसने उसकी कीमत दी। वो मेरे खातिर क्रूस पे जान दे दी, वो मेरे खातिर क्रूस पे जान दी। दिल को ये ख्याल सताता है बार बार, हाँ दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। दिल को ये ख्याल सताता है बार बार, हाँ दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार, हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार। दिल को ये ख्याल
सताता है बार बार। आमीन। জয় যিশু। আসুন আমরা দানের জন্য প্রার্থনা করি। মহান ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ করি প্রভু তোমার সুন্দর বাক্যের জন্যে, যা আমরা শিখলাম এবং আমাদের কাছে না রেখে যা কিছু আমরা জানি অপরকে শেখানো, এবং আমাদের পর যারা শেখাবেন তাদের হাতে যেন আমরা আমাদের ব্যাটন তুলে দিতে পারি। এই শিক্ষা যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা যেরকম পাচ্ছি সেরকম প্রতিটা মুহূর্তে আমরা যেন অপরকে সেই শিক্ষা দিতে পারি। প্রভু আজকে এই সুন্দর দিনের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি, সুন্দর সময়ের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি, সুন্দর বাক্যর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। প্রভু এই দান দশমাংশ তোমার চরণতলে সমর্পণ করলাম। প্রভু তুমি যা কিছু আমাদের উপহার স্বরূপ দিয়েছো, আমরাও তোমার চরণতলে সেই উপহার নিয়ে এসেছি। প্রভু তোমার রাজ্য ধার্মিকতার কাজে ব্যবহার করার জন্য তুমি এই দান দশমাংশকে আশীর্বাদ করো প্রভু, এবং আমাদের সবাইকে যারা দিয়েছেন প্রভু সবাইকে তুমি আশীর্বাদ যুক্ত করো। স্তবতুতি আরাধনা সব তোমার হোক, তোমার নাম ধন্য হোক। ক্ষুদ্র বিনতি প্রার্থনা একমাত্র ত্রাণকর্তা মুক্তিদাতা প্রভু যিশুর নামে জীবন গ্রহণ হোক। আমিন। थैंक यू। हमारे बीच में आई डोंट नो आप पहली बार आए हैं ना, इससे पहले भी आए हैं। अगर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ अपनी जगह में खड़े हो जाएं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। सो आइए हम लोग ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। शायद पहली बार हमारे बीच में आए हैं। थैंक यू सो मच। आप बैठ सकते हैं। आप कोई अगर दूसरा चर्च नहीं जाते हैं तो हमारे इस चर्च को आप अपना परिवार के रूप में आप ले सकते हैं। सो हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे, सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आज अभी तक आपने संभाला, सब बात में सहायता मदद किया। प्रभु आज जो भी वचन प्रभु हमने सुना है उस वचन को हमारे जीवन में प्रभु काम करने दीजिए और होने दीजिए। परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए आपने हमें बुलाया उस उद्देश्य को हम पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ते जाने पाएँ। इस सप्ताह को आपके हाथ में देते हैं। जितने भी काम प्रभु आपने हमारी जिम्मेदारी में दिया है उन सारा काम को हम अच्छी रीति से करने पाएँ। जहाँ जहाँ लोग जॉब करते हैं, अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, अलग अलग जगह में इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, प्रभु हर एक काम में वो लोग बहुत ही मन लगाकर अपना समय और एफर्ट देने पाएँ, ताकि प्रभु जिस जगह में आपने उनको रखा है वो जगह अच्छा होने पाए, बेहतर होने पाए। उसी के साथ हम प्रार्थना करते जो पढ़ाई करते प्रभु, जितने भी हमारे बच्चे लोग, जवान लोग, उनके साथ हो, उनके पढ़ाई में आशीष दे, बल बुद्धि ज्ञान दीजिए। और प्रार्थना करते परमेश्वर उनके भविष्य को आपके हाथ में हम देते हैं कि प्रभु उनके भविष्य को आप सही दिशा में ले जाएं। हमारे शहर को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, बड़ी आशीष दे। हम जानते हैं प्रभु हमारे शहर में आपके वचन की ज़रूरत है, आपके राज्य की ज़रूरत है, शांति, एक धार्मिकता की ज़रूरत है। परमेश्वर उस पहल में जबकि हम एज अ नवजीवन फैमिली प्रभु हम चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, और भी बहुत सारे कलीसिया हैं प्रभु आपके वचन को लेकर के, जो शांति का वचन, जो जीवन देने वाला वचन को लेकर जब हम उन तक पहुंचते हैं, अलग अलग जगह में जाते हैं, प्रभु हमारे साथ हो, बड़ी आशीष दें। हमारे हर ज़रूरतों को पूरा कर। अगर किसी को नौकरी की ज़रूरत है परमेश्वर, काम की ज़रूरत है प्रभु जी, आप उसका उपाय करें। उसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं अगर हमारे बीच में कोई बीमार है, कोई भी अगर बीमारी है, यीशु के नाम से हर एक बीमारी को हम डांटते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन शरीरों को छोड़ दे और चंगाई को आप प्रदान कीजिए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, बाकी समय को आपके, हमारे जो फेलोशिप को आपके हाथ में देते हैं। हम लोग जब एक दूसरे से सहभागिता करते हैं प्रभु हम एंजॉय करने पाएँ, एक दूसरे की उपस्थिति को प्रभु हम आनंद उठाने पाएँ। धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन।
ठीक है, बैठ सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने जैसे देखा थोड़ा समर्पण का ज़रूरत पड़ता